Good morning, class. Yesterday we left our topic uh, of the chapter Outcome of Democracy. We were discussing accountability, responsive and legitimacy of the government in democracy. So here we had seen about all the functions of democracy and how much government is responsible and accountable, and what is the process behind when it takes a decision. So to continue that topic, we'll see here in substantive terms, it may be reasonable to expect from democracy a government that is attentive to the needs and demands of the people. So we have seen here कि मतलब गवर्नमेंट जो है वो लोगों का ध्यान रखती है, मतलब इट्स द प्राइम ड्यूटी ऑफ दैट गवर्नमेंट कि मेनली क्या है परमानेंसी. सब्सटेंटिव का मीनिंग है परमानेंट, ठीक है, कंटिन्यूसली अ परमानेंट. इट्स इन माइंड ऑफ द गवर्नमेंट, शुड बी इन माइंड ऑफ गवर्नमेंट दैट दे शुड कीप द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल एंड लार्जली फ्री ऑफ करप्शन. मतलब वो ऐसी सरकार दे जहाँ पर कि करप्शन ना हो. द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट इम्प्रेसिव ऑन दीज टू काउंट्स. अगर हम कहें यही अच्छा नहीं है, मतलब इफ मोर करप्शन यू फाइंड दैट इज इन डेमोक्रेसी. टू काउंट्स का मतलब यहाँ पर कि ज़्यादातर आपको करप्शन कहाँ देखने को मिलेगा, डेमोक्रेसी में. क्यों? क्योंकि लोग थोड़ा फ्री हो जाते हैं. अब फ्री होना चाहिए पॉजिटिव सेंस में, मतलब दे मस्ट हैव द राइट टू एक्सप्रेस एसोसिएशन, लेकिन यहाँ पर करप्शन भी बढ़ता है. Democracy often frustrates the needs of the people and often ignore the demands of majority of its population. And the routine tales of the corruptions are enough to convince us that democracy is not a free of all these people. तो लगातार ये देखने में आता है कि डेमोक्रेसी में ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं. इट इज़ ऑर्डिनरी. एट द सेम टाइम देयर इज़ नथिंग टू शो दैट नॉन डेमोक्रेटिक क्रेसीज आर लेस करप्टेड और मोर सेंसिटिव टू द पीपल. So there is one respect in which democratic government is certainly better than the alternatives. Again and again we say always that it is better than other. On behalf of the people even that they have full right, and democracy give chance to correct the mistakes which we read in the initial characteristics. So democratic government is legitimate government. It may be slow, less efficient, not always very responsive or clean, but democratic government is people's own government. Now we have to focus this particular sentence over here कि ये लोग अपने आप चुनते हैं ऐसी सरकार. मतलब सारा किस पर आया, लोगों पर आया. भाई आपने ऐसी सरकार चुनी है तो आपकी वजह से ये है. तो ज़्यादातर फिर क्या होता है, इट्स अ पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल ओनली दैट दे कैन रेक्टिफाई, दे कैन रेज द क्वेश्चन, दे कैन demonstrate, they can realize the government their error. So that is why there is overwhelming support of ideas of democracy all over the world. क्योंकि लोग चुनते हैं और लोग बना सकते हैं और गिरा भी सकते हैं. मतलब मोटिव जो हम कहेंगे पीछे का आइडिया यही है कि सब कुछ किसके हाथ में है, पीपल. So as the accompanying evidence from South Asia shows, the support exists in countries with democracy regime as well as the countries without democratic regime. People wish to be ruled by the representative elected by them. Many examples are there in all over the world when we see. So basically people follow this term, that is democracy, means they want that they should choose their government with their own wish. So they also believe that democracy is suitable for the country. Democracy's ability to generate its own support of itself and outcome that can be ignored. तो हम आउटकम को ना देखते हुए सिर्फ ये देखें कि ये लोग बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं मतलब गवर्नमेंट को. सो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. नाउ हेयर दिस कैरिकेचर यू कैन रीड एंड अंडरस्टैंड विद योर ओन कि डेमोक्रेसी में मतलब इस तरीके का आपको ये भी ड्रॉबैक्स देखने को मिलते हैं कि पुअर जो होते हैं वो बहुत पुअर होते हैं, मिडिल क्लास थोड़ी स्ट्रेंथन होती है और रिच क्लास ज़्यादा रिच होती है. तो इकोनॉमिक ग्रोथ इन आर डिस्ट्रीब्यूशन गेन्स इन 2006 and that particular will be given on the this cartoon. Generally you will see that in the next 3 pages about the disparities between the rich and poor. So what the country do receive the greater share in the world wealth. So here you see that the
countries which are you can say the developed countries, developing countries and underdeveloped countries. So let's come to the topic first, economic growth and development. So in democracy are expected to produce good government. Expectations बहुत हाई होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं बहुत सॉलिड हैं, बहुत अच्छे हैं, तो उन पर चलने के लिए क्या है, तो आउटकम भी अच्छा ही चाहिए ना, लेकिन इट डजेंट हैपन, ठीक है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द रूलर्स, ठीक है, वो किस तरीके की पॉलिसीज़ बनाते हैं, बट लिबरलाइजेशन बहुत है, क्योंकि आप किसी को भी मतलब एक तरीके से डिक्टेटर वाली सिचुएशन में नहीं ला सकते हो, पीपल आर फ्री, तो करप्शन भी है, सो ऑल थिंग्स कम टुगेदर वी सी इन डेमोक्रेसी, देन इट इज़ नॉट फेयर टू एक्सपेक्ट दैट दे वुड ऑल्सो प्रोड्यूस डेवलपमेंट। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि करप्शन ना हो। रिमेंबर मैडम इन 2 क्लास वी रेड इन 9th क्लास कि सब चीज़ें हम एक परफेक्शन जो है वो डेमोक्रेसी में बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी कांट सी, क्योंकि डेमोक्रेसी अपने आप में परफेक्ट है, लेकिन उसको फॉलो कैसे किया जा रहा है डिपेंड्स। तो एविडेंस शोज दैट इन प्रैक्टिस मैनी डेमोक्रेसीज डिड नॉट फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशन। बहुत सारे डेमोक्रेसीज हैं अदर देन अमेरिका, इंडिया, तो वहाँ पर क्या रूल फॉलो किए जा रहे हैं डिपेंड्स। इफ़ यू कंसिडर ऑल डेमोक्रेसीज एंड all dictatorship for 50 years between 1950 2000, dictatorship have slightly higher rate of economic growth। देखिए वहाँ वन मैन रूल है तो वहाँ हायर ग्रोथ होगी। दे डोंट बॉदर, वो हम पढ़ चुके हैं पीछे वाले पैराग्राफ में, दे डोंट बॉदर अबाउट द विश एंड डिमांड ऑफ द पीपल, ठीक है, वन मैन पॉलिसी है, इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए कुछ भी करेंगे। लाइक चाइना आप देख सकते हैं, एक ही तरह की गवर्नमेंट है, अगर चाइना में भी हमारे जैसा डेमोक्रेसी होता तो शायद वो उसका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या उसका जो मार्केट है वो इतना ना हो पाता वहाँ। मतलब इसमें क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत हाई रेट पे दिखाई देगी, वी कैन कंपेयर अवर सेल्फ विद China even. So the inability of democracy to achieve higher economic development worries us. तो ये हमें जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं वहाँ मतलब ग्रोथ लाने के लिए जो है वो इनकैपेबिलिटी आती है। बट दिस अलोन के नॉट बी द रीज़न टू रिजेक्ट द डेमोक्रेसी। अब मतलब डेवलपमेंट नहीं आ रहा है, इसको हम ऐसा नहीं कह सकते तो हमें डेमोक्रेसी नहीं लानी चाहिए। ऑलरेडी स्टडीड वी हैव इन इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द सेवरल फैक्टर्स, ठीक है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अब हम लार्ज कंट्री की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट इज़ दैट पॉपुलेशन, अनदर इज़ दैट ग्लोबल सिचुएशन कि आपके कंट्री का सिचुएशन क्या है, आपका कंट्री कितना एडवांस है, टेक्नोलॉजी फुल ऑफ है, तो एवरीथिंग इन ऑल सब्जेक्ट्स वी हैव रेड all kind of things। तो cooperations from other countries, ठीक है, रिलेशन कैसे हैं, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ क्या है अडॉप्टेड बाय द कंट्रीज, हाउ आर द डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन लेस एंड डेवलप्ड कंट्रीज विद डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी इज नेग्लिजिबल। तो ये हम इसको नेग्लिजिबल का मतलब है कि इसको हम नकार सकते हैं, इस तरफ इग्नोर कर सकते हैं कि इसमें ऐसा कोई पार्ट नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द कंट्रीज पॉलिसीज। सो ओवरऑल वी कांट से दैट डेमोक्रेसी इज अ गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दिस लाइन टू बी नोटेड डाउन, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो डेमोक्रेसी कोई स्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करती है हाउ द कंट्री वुड बी डेवलप्ड, ठीक है, वो एक हमें गाइडलाइन देती है हाउ द कंट्री कैन बी बेटर इन डेवलपमेंट एंड पॉलिसीज। सो बट वी कांट एक्सपेक्ट democracy is not to lag behind dictatorship is in respect. So when we find such significant differences in the rates of economic growth between the countries under the dictatorship and democracies, it is better preferred democracy has its several other positive outcomes. So again and again we have discussed this. Now this is for you, you can read yourself economic outcome of the democracy. In another video we will take the reduction of inequality and poverty, okay, because the video will be lengthier if I take the whole topic. So in the next video we will take the in another video. Till then, thank you, have a nice day.